Number 11. A firm has two departments, cloth and ready-made cloth department. The cloths are made by the firm itself out of cloth supplied by cloth department at its selling price. From the following figures, prepared departmental trading and profit and loss account for the year 1998. Cloth department and ready-made cloth department. Opening stock 2,40,000, 48,000. Sales 20 lakh, 6 lakh. Transfer to ready-made cloth department 4 lakh. Purchase 18 lakh, 24,000. Manufacturing expenses 68,000. Selling expenses 40,000, 4,000 and closing stock 3 lakh and 60,000. The stock in ready-made cloth department may be considered as consisting of 80% cloth and rest as expenses. The cloth department made a GP of 25% in 1997. General expenses of the business as a whole came to rupees 1,80,000. You have to prepare departmental trading and profit and loss. क्या दिया देखो, फिर से पढ़ने के बाद. A firm has two departments, cloth and ready-made cloth department. The यहाँ पे correction कर लेना. The cloths are made है ना, तो cloth के पहले ready-made cloth ये word लगाना है. The ready-made cloths are made by the firm itself. The ready-made cloths ये होना चाहिए. So ये wording actually ऐसा है. A firm has two departments, a firm has two department, cloth and ready-made cloth department. The ready-made cloths are made by the firm itself out of cloth supplied by the cloth department at its selling price. At its selling price. ठीक है? Underline करके क्या? At its selling price. So what is the selling price? Is not given. ठीक है? From the following figure, prepare department trading account and profit and loss account for the year 1998. Cloth department ready-made cloth. Opening stock आपको दिया है. Sales. Transfer to ready-made cloth department 4 lakh. So cloth department ने ready-made cloth department को जो transfer किया है during the year is rupees 4 lakh. Purchases 18 lakh 24,000. Manufacturing expenses, selling expenses, closing stock 3 lakh and 60,000. The stock in ready-made cloth department, stock in ready-made cloth department के stock की बात कर रहे हैं, may be considered as consisting of 80% cloth and rest as expenses. अब देखो ready-made cloth के पास कितना stock है closing में 60,000. तो ये 60,000 का जो stock है, 60,000 का जो stock है, उसमें क्या दिया आपको? Stock in ready-made cloth department may be considered as consisting of 80% cloth and rest as expenses. इसका मतलब ये जो 60,000 का जो stock आपके पास है, इसमें cloth का proportion कितना है? 80%, मतलब 48,000. मतलब ready-made cloth के पास जो closing stock है, उसमें cloth department का जो stock included है, it is 48,000. ये डायरेक्टली दिया हुआ है आपको. यही तो हम पिछले प्रॉब्लम में फाइंड आउट करते थे. हम फाइंड आउट करते थे डिपार्टमेंट बी के पास प्रोपोर्शनल स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए, और वो यहाँ पर आपको दिया. लेकिन पिछले में जीपी देते थे आपको, इस बार जीपी नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट में देखो क्या दिया आपको. द रेडीमेड क्लॉथ्स आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय क्लॉथ डिपार्टमेंट एट इट्स सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस आपको दी है, लेकिन दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट, बट दैट व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन. अगले लाइन पे चलें. The cloth department made a GP of 25% in 97. ये पिछले साल का GP है. हमारा तो करंट ईयर कौन सा है? 90. ये तो पिछले साल का है. And general expenses of the business as a whole came to rupees 1,80,000. Got it? Yes. We'll prepare this. Then आप पहले departmental trading and profit and loss. Now what I will suggest, देखो हम लोग trading and profit and loss बनाएंगे and profit and loss adjustment. ठीक है? Now अभी जो मैंने आपसे बात की थी पिछले प्रॉब्लम में कि कभी-कभी प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, तो मैं आपको वो भी एक सॉल्यूशन करके दिखा था जो पिछले प्रॉब्लम में बात कर रहा था.
तो in this problem will not go for P&L adjustment, ठीक है? In this problem we'll have 3 columns. Profit and trading P&L को 3 कॉलम करेंगे. कैसे समझ में आएगा? कर दीजिए. So this is departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 98. दस से 12 लाइन चाहिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं. Here, cloth and ready-made cloth. Total. The format is ready. Opening stock 2,40,000, 48,000. Two lakh 40,000 and 48,000. So दोनों मिलाकर ऑर्डर में 2,88,000. Sales 20 lakh and sales 6 lakh. So credit में buy sales 20 lakh 6 lakh 26 lakh. ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट. सो ये क्लॉथ डिपार्टमेंट है, रेडीमेड को ट्रांसफर किया. सो क्लॉथ के लिए क्रेडिट, रेडीमेड के लिए डेबिट. सो बाय ट्रांसफर क्लॉथ में आएगा 4 लाख, रेडीमेड में डैश, टोटल में 4. और डेबिट में आएगा टू ट्रांसफर इन योर रेडीमेड में आएगा 4 लाख. सो दिस टोटल आउटर में 4. ठीक है. परचेज 18,24,000. So this is two purchase. In the cloth 18 lakh. In your ready-made cloth 24,000. So 18 lakh 24,000. Manufacturing expenses. To manufacturing expenses. Ready-made के लिए 68,000. Even in the outer column also 68,000. Selling expenses 40,000, 4,000. बताओ ये मैं कहाँ लूँगा? P&L है ना? तो एक 4-5 लाइन यहाँ छोड़ देता हूँ मैं. वैसे तो सिर्फ GP आएगा. और मैं लूँगा यहाँ पर टू सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 and 4,000. It's 44,000. Closing stock 3 lakh and 60,000. Trading to credit. Buy closing stock 3 lakh and 60,000. 3 lakh 60,000. ठीक है. तो जो आंकड़े दिए वो लिखना बड़ा सिंपल है, लेकिन आंकड़ों के पीछे के जो आंकड़े वो फाइंड आउट करना इसकी है.
Now what is given to you? The stock in ready-made cloth department may be considered as consisting of 80% of cloth and rest as expenses. तो जो स्टॉक आपके पास है उस स्टॉक के अंदर 80% ये रेडीमेड क्लॉथ है, सॉरी ये क्लॉथ है. The cloth department made a GP of 25% 97. ये पिछले साल का GP है, इस साल का नहीं. General expenses of the business as a whole came to rupees 1,80,000. अभी ये general expenses 1,80,000. बताओ मैं क्या करूँगा इसको? P&L लूँगा to general expenses. कुछ पेज दिया है क्या? कुछ पेज दिया है आपको? Any basis is given? No. So what I can do? Simply मैं डायरेक्टली टोटल में ले लेता हूँ ना, मुझे नेट प्रॉफिट तो बिजनेस का मिल जाएगा पूरा. सो हियर आई एम टेकिंग टू दी टोटल कॉलम 1,80,000. गॉट इट? तो टोटल में ले सकते हैं उसको. इंडिविजुअल बाइफरकेशन मेरे पास नहीं है, ना कोई पेज है वहाँ पर. ठीक है. अब आई थिंक यू कैन क्लोज योर ट्रेडिंग. बाकी तो सिर्फ स्टॉक रिजर्व बचा है इसके अंदर, क्योंकि जो एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर किया है वो तो इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. सो ट्रांसफर प्राइस वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करनी है आपको. एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट योर जीपी कैरेक्टर ब्रॉट डाउन कर लो. जीपी कैरेक्टर ये आपका आता है 27 लाख. ये 6,60,000. अब बताएंगे कितना था जीपी? 6 लाख 1,20,000. 6,60,000 and 1,20,000. Is it? तो उसका ब्रॉट डाउन कर ले. 5 जीपी ब्रॉट डाउन. इंडिविजुअल कॉलम में 6,60,000 1,20,000. टोटल इज 7,80,000. Now, अब लिखना है. Let me solve the issue for you. Now we have to find out stock reserve. Now here particulars. अब उन्होंने क्या दिया देखो. कौन किसे ट्रांसफर करता है? क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लॉथ को ट्रांसफर करता है. ठीक है, मतलब कि गारमेंट की फैक्ट्री की शायद से. ठीक है. सो क्लॉथ डिपार्टमेंट ये रेडीमेड क्लॉथ को ट्रांसफर करता है. इसलिए रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में क्लॉथ डिपार्टमेंट से आया हुआ कुछ क्लॉथ इंक्लूड होगा, और यही उन्होंने दिया हुआ है. द स्टॉक इन अ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट. स्टॉक इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 80% क्लॉथ. तो उनके पास जितना भी स्टॉक है ना रेडीमेड क्लॉथ वाले को, जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर 80% क्लॉथ इंक्लूड है, जो कि क्लॉथ डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है. तो किसका 80% देंगे आप? 60,000. एंड डू रिमेंबर आपको क्या दिया? द स्टॉक इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट. स्टॉक इज ओनली स्टॉक. इसका मतलब ओपनिंग भी क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में भी तो स्टॉक नजर आएगा ना. तो इन्होंने तो थोड़ी ना कहा कि क्लोजिंग स्टॉक से. इन्होंने क्या कहा? ओपनिंग स्टॉक. इन्होंने स्टॉक कहाँ से? मतलब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, कितना है वो? 48,000. उसमें भी 80% क्लॉथ है, और क्लोजिंग का जो 60,000 है उसमें भी 80% क्लॉथ है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो क्लॉथ है 80%, उसके ऊपर आपका स्टॉक नजर आएगा. सो हियर you please don't write. I will make the columns particulars, opening stock and closing stock. Now here stock amount कितनी है? opening 48,000 60,000.
Therefore, cloth department stock included in above, that is 80%. तो जो 48,000 ओपनिंग है उसके अंदर 80% क्लॉथ ही है, 38,400 and this is 48,000, right? Then stock reserve. Now here, अब कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि जीपी रेशियो आपको दिया नहीं है। जीपी रेशियो जो दिया है आपको वो कौन सा दिया, 1997 का दिया। करंट ईयर का कौन सा है, 98 है। तो जो 1997 जो पिछले साल का जीपी रेशियो है, जो पिछले साल का जीपी रेशियो है, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर दिस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक आपका 1497 का है, 1497 का है, और ये तो 31 मार्च 98 का है। तो 31 मार्च 98 का जो करंट ईयर का है उसके लिए करंट ईयर का जीपी लगेगा, उसके लिए करंट ईयर का जीपी, इस साल का जीपी। और ये जो 38,400 है ये तो पिछले साल से आया, मतलब इसमें पिछले साल का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो पिछले साल का जीपी रेशियो कितना आपका 25% जीपी रेशियो, ये पिछले साल का 25% आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और करंट ईयर का यस यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट ईयर का जीपी कितना है आपका, डिपार्टमेंट क्लॉथ डिपार्टमेंट का कितना है जीपी, 6,60,000। मैं थोड़ा यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ। जीपी रेशियो 97, 98 कैसे निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स into 1. So what is the GP? 6,60,000 divided by how much, 20 lakh। ध्यान रखो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने ये सेल किया 20 लाख, दिस इज सेल टू दी आउटसाइडर्स, डेफिनेटली एट प्रॉफिट। और क्लॉथ डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर करता है ये भी तो सेल ही है ना आपका, ये भी तो प्रॉफिट से करते हो। तो जीपी जो आपको मिलता है वो इन दोनों पर मिलता है ना, इसी 20 लाख पर मिलता है। जीपी किस पर आएगा, जो आउटसाइड सेल है उस पर भी आएगा, और जो आपका इंटरनल ट्रांसफर है वो भी आप प्रॉफिट से करते हो ना। तो आपका जो 6,60,000 का जीपी है ना, दिस इज ऑन दिस टोटल से 24 लाख, गॉट इट, इनटू, सो व्हाट इज द जीपी रेशियो, 27.5%। ये करंट ईयर का जीपी 27.5% वो यहाँ पर है। Therefore, stock reserve 38,400 का 25%, 9,000, and this is 13,200, got it। अब ये जो हमारे स्टॉक रिजर्व्स है ये हम P&L में कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट टोटल कॉलम में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ना उसका जो स्टॉक रिजर्व हो क्रेडिट में आएगा आपका बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक में जो आएगा दैट इज बाय स्टॉक रिजर्व 9,600, और जो क्लोजिंग का है वो डेबिट में आएगा टू स्टॉक रिजर्व 13,200। Now this is very clear, समझ में आ गया। Now please write down this working first। then दोनों को clear।
व्हाट इज द फाइनल नेट प्रॉफिट, जो कि आपसे आउटर कॉलम में करेंगे। हाउ मच? 5,52,400। इस कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन नहीं है? चलिए फिर आगे।